Testing of hypothesis. Testing of hypothesis is an important topic in statistics. Testing of hypothesis basically deals with inferencing. Inference to draw something conclusion about anything about population. Basically, the meaning of inference is to draw a conclusion. In our statistics language, you can say that we are trying to draw a conclusion about a population parameter. We are trying to draw a conclusion about the sample observation on the behalf of the population. So testing of hypothesis is the parameter of statistics because we are doing testing on the basis of hypothesis that we made on the basis of the sample observations the past experiences. Keywords for today lecture is null hypothesis, इसके आगे मैंने H नॉट लिखा हुआ है, alternative hypothesis HA, testing hypothesis, test statistics and p value. I will discuss null hypothesis, alternative hypothesis, testing hypothesis in this video. Null hypothesis, alternative hypothesis, testing hypothesis, test statistics and p-value will discuss in previous video or a next video. Definition of a hypothesis. It is a statement about one or more populations. It is usually concerned with the parameters of the population as I already discussed with you. It is a statement about one or more populations. Simply अगर हम hypothesis के बारे में बात करें, कल सारा दिन बहुत बादल थे और मैंने ये एग्जेप्शन बनाई थी कि क्या पता आज बारिश हो जाए, लेकिन पास्ट रिजल्ट्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए कि मुल्तान है, यहाँ पर जितने मर्जी बादल आ जाएं, बारिश अपनी मर्जी से ही होती है, मैंने ये हाइपोथेसिस बना लिया कि बारिश नहीं होगी. दिस इज माय हाइपोथेसिस. अब ये जो हाइपोथेसिस मैंने बनाया, अब मैं इसको टेस्ट करूंगी. ठीक है. इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट वन और मोर पॉपुलेशन. It is usually concerned with the parameters of the population. Parameters is basically the pillar of anything. Let's suppose the parameter of your family is your father and your mother. Because we are all dependent on them and the जो घर हैं वो उन्हीं की वजह से हैं. So these are the parameters. For example, the hospital administrator may want to test the hypothesis that the average length of stay of patients admitted to the hospital is 5 days. कि एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर ने ये हाइपोथेसिस बनाया कि एक मरीज अस्पताल में 5 दिन रहता है. उसने ये हाइपोथेसिस बनाया. अब ये हाइपोथेसिस उसने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन को देखते हुए बनाया होगा. ये हाइपोथेसिस उसने पास्ट रिजल्ट्स को देखते हुए बनाया होगा. उसने ये हाइपोथेसिस तो बना लिया. अब उसको टेस्ट करना चाह रहा है कि वाकई कोई भी जो मरीज है वो 5 दिन ही अस्पताल में रहता है. अब वो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा. बेसिकली ये हाइपोथेसिस होता है. हाइपोथेसिस इन सिंपल वर्ड इज एन assumption that we made about the about the population on the basis of the sample observation, that we made about the population on the experiences or the on the basis of the experiments. So hypothesis is simply a assumption. Definition of statistical hypothesis. पहली डेफिनेशन किसकी थी? हाइपोथेसिस की थी. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आपके पास क्या होता है? हाइपोथेसिस इज एन एक्सेप्शन. कोई सा मैं फुरुसा जो मैं बनाती हूँ. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होगा? देयर आर हाइपोथेसिस दैट आर स्टेटेड इन सच अ वे दैट दे मे बी इवैल्यूएटेड बाय एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. वो हाइपोथेसिस जिसको हम इवैल्यूएट करते हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. A hypothesis that is evaluate, जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. वन इज नल हाइपोथेसिस, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ एच नॉट के साथ, एंड द अदर इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ एच ए के साथ. There are two types of hypothesis. One is null hypothesis and one is alternative hypothesis.
इट इज द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। ये वो हाइपोथेसिस होता है जिसको मैंने टेस्ट करना होता है। मैंने अपना नल हाइपोथेसिस ये बनाया था कि एक मरीज 5 दिन अस्पताल में रहता है। अब जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो अगेंस्ट होगा किसके, नल हाइपोथेसिस के। मैं ऑल्टरनेटिव ये बना रही हूँ कि एक मरीज 5 दिन हॉस्पिटल में नहीं रहता, या वो 5 दिन से कम रहता है, या वो 5 दिन से ज्यादा रहता होगा। तो आई एम डिसएग्री फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है टू बी टेस्टेड, जिसको टेस्ट करना होता है, और ऑल्टरनेटिव आपके पास वो हाइपोथेसिस होता है is a statement what we believe is true if our sample data cause us to reject the null hypothesis। जैसे कि इस लाइन का मतलब ये है कि आप लोगों से मैंने पेपर लिया और मैंने पेपर आपसे कहा कि मैं 450 पे इसको क्लोज कर दूंगी। मैंने 452 पे आपकी जो रिस्पॉन्सेज है उसको डिनाई किया था एक्सेप्ट करने से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा मैम मैंने पूरे 450 पे अपना रिस्पॉन्स सबमिट करवा दिया था लेकिन मेरा नाम नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो अपनी तौर पे तो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि अभी मैंने तो 450 पे सबमिट करवा दिया था, लेकिन यहाँ तक मुझे तो रिस्पॉन्स आपका नहीं मिला था। मैंने तो यही हाइपोथेसिस बनाया है ना कि बच्चे ने जमा नहीं करवाया। वो बात जो आप कह रहे हो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि वो ठीक नहीं है, या हमारा सैंपल डाटा कह रहा होता है कि वो ठीक नहीं है, वो ऑल्टरनेटिव होती है। और इसको हम अगर बहुत आसान वर्ड्स में लिखें, नल हाइपोथेसिस इसका ये बन जाएगा कि आई सबमिट माय रिस्पांस एट 450, दिस इज योर हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, माय रिस्पांस इज नॉट सबमिट एट 450। अब मैं इसको चेक करूंगी, मैं कैसे चेक करूंगी, मैं तमाम स्टूडेंट्स का डाटा लूंगी और मैं देखूंगी कि जितने भी लेट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वाकई 450 पे सबमिट करवाया था। अगर करवाया होता तो मेरे पास होता जैसे कि बाकी बच्चों का भी था। अगर ये बात गलत साबित हो जाती है तो फिर मैं क्या करूंगी, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी। नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसको हमने टेस्ट करना होता है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होता है व्हाट वी बिलीव इज ट्रू इफ आवर सैंपल डाटा कॉज अस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जो हम कहें कि मैं तो ठीक था, वो जिस तरह बच्चे करते हैं ना, बाबा बाबा मैंने तो पूरा काम किया था, मेरे तो पूरे 50 में से 50 नंबर आने चाहिए थे, मेरी टीचर ने मेरे से ज्यादती की है, उन्होंने मुझे फेल कर दिया है, बाबा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। एक हाइपोथेसिस आपके पास नल होता है और एक ऑल्टरनेटिव होता है। नल को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल्टरनेटिव को हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हाइपोथेसिस आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस भी होता है और कंपोजिट हाइपोथेसिस भी होता है। सिंपल हाइपोथेसिस आपके पास वो हाइपोथेसिस होता है, a simple hypothesis is one in which all parameters of the distributions are specified, कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूशंस के तमाम पैरामीटर्स कंप्लीटली स्पेसिफाई हों। इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर कोई से 4 तालिब इल्म ले लूँ आपकी क्लास में से और मैं ये कहूँ कि इनकी उम्र 17 साल है, आई एम डैम श्योर कि इनकी एज 17 ईयर्स है। इट्स मीन दैट all the parameters are completely specified is equal to, क्योंकि I said that Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D age is equal to 17 years, completely specified। Composite hypothesis आपके पास वो hypothesis होगा which is not simple, in which all of the parameters are not completely specified। यानी कि मैं ये कह रही हूँ अपने सिंपल हाइपोथेसिस में कि ए बी सी डी की जो एज है वो 17 साल है, मैं श्योर हूँ। कंपोजिट में मैं ये कह दूंगी कि आई एम नॉट श्योर, मिस्टर ए मे बी 17 ईयर्स ओल्ड, मिस्टर बी शायद 17 साल से कम है, मिस्टर सी इसकी उम्र 18 साल है, 17 साल से ज्यादा है ये, और डी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 17 साल का या 20 साल का है। तो जहां पर आप लेस देन और ग्रेटर और नॉट इक्वल के दरमियान में आ जाएंगे तो वो आपके पास कंपोजिट हाइपोथेसिस हो जाएगा। सिंपल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज डील विद इक्वल साइन। माय एज इज 25, Mr. B age is 35, 45। सो जहां पर भी इक्वल कंप्लीटली स्पेसिफाई होगी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिंपल हाइपोथेसिस होगी। हाइपोथेसिस में भी एग्जैक्ट एंड अनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस। इन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस वही था जो कि मैंने पहले बताया आपको कि द एज ऑफ द स्टूडेंट इज 75, यूनिक वैल्यू सिलेक्ट किया उसने। अब जहां पर आपके पास वन और मोर पॉसिबल वैल्यू किसी भी चीज के लिए कहेगा वो आपके पास इनएग्जैक्ट होगी।
आप इसको कह सकते हैं कि सिंपल हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट हाइपोथेसिस, alternative hypothesis is also called inexact hypothesis. The 7-step process of statistical hypothesis testing, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करने के लिए हमें 7 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, कि आपने ऐसे ही याद करने है. We require 7 steps to perform our testing of hypothesis procedure. One step is state the null hypothesis. Second step is state the alternative hypothesis. Third step is level of significance. Fourth step is collect data. Fifth step is calculate a test statistics. Step 6 is construct acceptance or rejection region. Step 7 based on step 5 and step 6 draw a conclusion about H not null hypothesis. Step 1 और step 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया है. Step 3 में नेक्स्ट इसमें बता दूंगी स्लाइड में. 4, 5, 6 एंड 7 में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. 3 केसेस होते हैं हाइपोथेसिस के. नंबर 1, हमेशा यही 3 केस होंगे. या आपके पास नल हाइपोथेसिस इक्वल होगा म्यू नॉट के, या आपके पास नल हाइपोथेसिस जो सा है. अब मैंने आपसे कहा था कि नल हाइपोथेसिस हमेशा सिंपल हाइपोथेसिस होता है, हमेशा इक्वल होता है. लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो आपके पास म्यू इक्वल है, यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आना था. यहाँ पे जैसे ये लेस है और ये ग्रेटर है. सिंपल हाइपोथेसिस की 3 स्टेजेस होती हैं, यानी कि हमेशा इक्वल होता है. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस का साइन भी आता है, ग्रेटर का भी आता है, और साथ में नॉट इक्वल का साइन भी आता है. हमेशा यही 3 केसेस ऑफ हाइपोथेसिस के हम अपनी तमाम क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं. एक नॉट इक्वल का, एक लेस का और एक ग्रेटर का. Now I am going to tell you about what is level of significance. The level of significance is denoted by alpha. This sign is called alpha, this one. The level of significance is denoted by alpha is a probability in, और ये क्या होती है, probability होती है. In fact, the probability of rejecting a true null hypothesis. Here the word is probability. Probability आपके पास क्या होती है, chance. Chance को आप statistics में probability भी कहते हैं. लेट्स सपोज नीट का पेपर बहुत आसान है था, चांसेस हैं कि फाइनल का पेपर मुश्किल आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी है. क्या पता मैं पास होता हूँ, क्या पता मैं पास नहीं होता. आज बारिश आएगी, आज बारिश नहीं आएगी. क्या पता सितंबर में यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, जिसमें हम श्योर नहीं होते हम क्या क्या रहे हैं. So this is called level of significance. Level of significance is the probability, in fact the probability of rejecting a true null hypothesis. जिसमें हमने अपने true null hypothesis को reject करना होता है, वो हमारे पास level of significance होता है. Thank you. This is a part 1 of the testing of hypothesis, in which I discussed about only testing of hypothesis क्या होती है, steps उसके discuss किए, level of significance को discuss किया है, types of hypothesis को discuss किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन, व्हाट इज पी वैल्यू, व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज कैलकुलेशन. आई होप आपको ये समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच.